یہ قصہ ہے اس بیٹے کا جس کے پاس نہ سونے کا تاج تھا نہ شجاعت کی کوئی تلوار، صرف ایک بوڑھی ماں کی تھر تھراتی ہوئی دعا تھی۔ دن بھر لکڑیاں کاٹتا، شام کو بازار میں بیچتا اور رات کو ماں کے پاؤں دباتے ہوئے صرف ایک بات کہتا، اماں کل کچھ بہتر ہوگا۔ ماں ہر رات آسمان کی طرف دیکھ کر کانپتے لبوں سے بس ایک ہی جملہ دہراتی، میرے رب میرے بیٹے کی شادی کسی شہزادی سے کر دینا۔ لوگ ہنستے، وقت بدلتا نہیں تھا، مگر اس دعا میں جو آگ تھی وہ تقدیر کو جلا سکتی تھی۔ پھر ایک دن جنگل میں دو پرندے اترے، ایسے پرندے جن کے پروں میں راز تھے اور پرواز میں قسمت۔ اس جھونپڑی کے ٹپکتے ہوئے چھت تلے ایک بوڑھی ماں کانپتے ہاتھوں سے چولہا جلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ باہر آندھی ہے، اندر غربت کا سناٹا۔ وہ دال کی پتلی سی ہانڈی میں چمچ ہلاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے، یا اللہ میرے منگتو کو وہ عزت دے جو کسی بادشاہ کو دی ہو، اس کی تقدیر بدل دے۔ ماں کے جھریوں والے چہرے پر امید کی ایک لکیر جھلک رہی ہوتی ہے۔ منگتو ہاتھ میں کلہاڑی لیے پسینے میں شرابور جنگل کے بیچ تنہا لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ اس کے کندھے پر پرانی بوری ہے، کپڑوں پر مٹی اور چہرے پر تھکن۔ وہ ہر وار میں ایک ہی بات دہراتا ہے، اماں خوش ہو جائے، کچھ بھی کر لوں اماں خوش ہو جائے۔ اس کی سانسیں بھاری لیکن جذبہ جوان ہوتا ہے۔ منگتو شام کو لکڑیاں بیچنے بازار جاتا ہے، لیکن آج کوئی خریدنے والا نہیں۔ وہ دیوار کے سائے میں بیٹھ کر اپنی پگڑی اتار کر جھولی میں رکھتا ہے۔ ایک دکاندار ترس کھا کر دو روٹیاں تھما دیتا ہے۔ منگتو آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، خالی ہاتھ تو ہوں مگر ماں کے سامنے کبھی خالی نظریں نہ لے کر جاؤں۔ منگتو گھر لوٹتا ہے۔ اماں دروازے پر چشم برا ہے۔ جیسے ہی منگتو داخل ہوتا ہے، اماں بغیر کچھ دیکھے بول پڑتی ہے، آ گیا میرا راجا بیٹا۔ منگتو چپ چاپ دو روٹیاں اس کے سامنے رکھتا ہے۔ ماں کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، جیسے سونے کی پلیٹ آ گئی ہو۔ رات کو منگتو اپنی ماں کے پاؤں دباتے ہوئے کہتا ہے، اماں تیری دعا تو بادشاہی مانگتی ہے اور میرا حال دیکھ، یہ گدڑی، یہ کلہاڑی۔ ماں کے لبوں پر مسکراہٹ ہے، بیٹا بادشاہی دل میں ہوتی ہے، کلہاڑی والے بھی بادشاہ ہو سکتے ہیں اگر نیت سچی ہو۔ سونے سے پہلے ماں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتی ہے اور آہستہ کہتی ہے، یا رب میرے بیٹے کو ایسی عزت دینا جو خوابوں میں بھی نہ سوچی ہو۔ منگتو ایک ٹوٹی چارپائی پر آنکھیں بند کرتا ہے، لیکن اس رات نیند کوسوں دور ہے، تقدیر اس کے دروازے پر دستک دینے والی ہے۔ منگتو جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا ہوتا ہے کہ اچانک اسے کسی غیر معمولی آواز کا احساس ہوتا ہے۔ وہ اپنے کلہاڑی روک کر آواز کی سمت دیکھتا ہے۔ درختوں کے بیچ دو غیر مانوس بڑے جسامت والے پرندے دکھائی دیتے ہیں جو انسانوں کی طرح بات کر رہے ہوتے ہیں۔ منگتو درخت کے پیچھے چھپ کر بہارستان، گویا قسمت نے اسے سن لیا ہو۔ چھپ کر سب کچھ سننے کے بعد منگتو خود سے کہتا ہے، اگر یہ پرندے بہارستان جا رہے ہیں تو کیوں نہ میں بھی جاؤں، ماں کے لیے کچھ بڑا لے آؤں۔ وہ درخت کے سائے میں کھڑا دل تھام کر اگلے لمحے کی پلاننگ کرنے لگتا ہے، خوف اور امید کا ملا جلا منظر۔ جیسے ہی پرندے اڑنے کے لیے پر پھیلانے لگتے ہیں، منگتو ایک زبردست چھلانگ مارتا ہے اور ایک پرندے کی پشت پر سوار ہو جاتا ہے۔ پرندے چیخ پڑتے ہیں مگر ڈر کے مارے اڑان بھر لیتے ہیں۔ نیچے جنگل چھوٹ رہا ہے، اوپر اندھیرے کی گہرائی۔ پرندے خاموش ہیں، منگتو کے ہاتھ پر کی گرفت سخت ہے، سانسیں بے قابو۔ اوپر تاریکی ہے، نیچے کوئی زمین نظر نہیں آتی۔ دل کہتا ہے، یا اللہ اگر تو نے بچا لیا تو کچھ بڑا کر دکھاؤں گا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان خود کو چھوٹا اور خدا کو بہت بڑا محسوس کرتا ہے۔ پرندے ایک سنسان پر اسرار جنگل میں اترتے ہیں۔ منگتو فوراً پیچھے سے کود کر بھاگتا ہے۔ درختوں کے بیچ سانس پھولتی ہے۔ دل کہتا ہے، کہاں آ گیا ہوں؟ کیا یہ بہارستان ہے؟ سردی ہڈیوں میں اتر رہی ہے۔
मगर आंखों में मां की उम्मीद है। मंगतू शहर में दाखिल होता है। हर तरफ रोशनी, कहकहे, काफिले और रंग बरंगे फूलों से सजी गलियां। मगर उसकी चाल नंगे पांव, लिबास बोसीदा, आंखों में हैरानी। एक बूढ़ा फकीर भीड़ में उसे देखकर कहता है, ऐ मुसाफिर, आज तो शहजादी की शादी है, तू कहाँ से आया है? भूखे पेट मंगतू भी एक दस्तरखान पर बैठता है, जहां लोग गोश्त और नान के साथ जश्न मनाते हैं। वो नजरें झुकाकर खामोशी से खाता है। एक शख्स उसे देखता है, पास आकर बैठता है और आहिस्ता कहता है, शक्ल से मजदूर लगते हो, क्या एक खतरनाक काम के लिए तैयार हो? वो शख्स बोलता है, 2000 दीनार अभी ले लो, बस एक रात बादशाह की बेटी के साथ दुल्हा बनकर गुजारनी है। बात मत करना, सुबह गायब हो जाना। मंगतू की आंखें दीनारों की चमक से दहक जाती हैं, मगर दिल में मां की सादा रोटी का जायका याद आता है। मंगतू तन्हा बैठा है, सिक्के उसके सामने बिखरे हैं, मगर दिल में एक जंग चल रही है। वो खुद से कहता है, ये क्या माँ को बताऊंगा, मैं किसी की इज्जत के साथ खेलने जा रहा हूँ, मगर अम्मा के ख्वाब उनके लिए। हर सिक्का जैसे एक सवाल बन गया हो। वही शख्स कहता है, मैं वजीर हूँ, शहजादा बदसूरत है, अगर शहजादी ने उसे देख लिया तो रुखसती मनसूख हो जाएगी। बस तुम निकाह वाली रात इसके भेस में जाकर चुपचाप सो जाओ, सुबह भाग जाना। मंगतू अब फरेब के तख्ते पर बिठाया जा चुका है। मंगतू को एक शानदार शहजादे का लिबास थमाया जाता है, सुनहरा कमरबंद, रेशमी कुर्ता, चमकती जूती, मगर उसके दिल में दर्द है। आईने में खुद को देखकर कहता है, अम्मा, ये ख्वाब है या फरेब? ये बादशाही तेरे बेटे के लिए है या किसी और का मुकद्दर चुरा रहा हूँ? महल का खास कमरा फूलों से सजा हुआ है, हर तरफ कंदीलें और इत्र की खुशबू। मंगतू एक शानदार शहजादे के लिबास में बैठा है, मगर उसके माथे पर पसीना है। दिल जोर जोर से धड़क रहा है। ये सब झूठ है, और झूठ के आगे शहजादी का मुकद्दर। शहजादी आहिस्ता से घूंघट उठाती है और सामने मंगतू को देखकर लम्हा भर के लिए हैरान हो जाती है। कितने हसीन हो आप, क्या वाकई मेरे शौहर हैं? मंगतू का दिल डूब जाता है। वो आंखें चुराकर खामोश हो जाता है। शहजादी उसकी खामोशी से परेशान हो जाती है। सरताज, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आप इतने खामोश क्यों हैं? मंगतू आहिस्ता से कहता है, मैंने एक मन्नत मानी है, 3 दिन तक किसी से बात नहीं करूंगा, फिर हम बहुत बातें करेंगे। मंगतू रात को आंखें बंद किए लेटा है, मगर दिल में तूफान है। माँ, तूने बादशाही मांगी थी, लेकिन ये फरेब है। किसी की इज्जत से खेलना बादशाही नहीं, ये तो धोखा है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। फजर से कुछ पहले शहजादी गहरी नींद में है। मंगतू आहिस्ता से उठता है। उसके सिरहाने 2000 दिनारों की पिटारी रखता है और खुद से कहता है, अगर मेरी माँ ने सच बोलना सिखाया है तो मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए। शहजादी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मंगतू चुपचाप महल से निकलता है। हवा में अजान की आवाज गूंजती है। वो पलटकर आखिरी बार महल की तरफ देखता है और फिर नंगे पांव जंगल की तरफ बढ़ जाता है। माँ, मैं बादशाह ना बन सका, लेकिन तेरा सच्चा बेटा जरूर रहा। मंगतू सारी रात चलने के बाद एक दरख्त के नीचे बैठता है। उसका चेहरा थका हुआ है,
पांव जख्मी, लिबास महल का मगर दिल लकड़हारे का। वो अपनी माँ की आवाज को याद करता है, बेटा इज्जत को कभी बेचने न देना। वो आसमान की तरफ देखता है जैसे कुछ मांग रहा हो। अचानक आसमान में वही दो परिंदे दिखाई देते हैं। मंगतू दौड़कर उनके करीब जाता है और चीखता है, मुझे वापस ले चलो, मैं वापस जाना चाहता हूँ। परिंदे उसे पहचान लेते हैं और बगैर किसी खौफ के दोबारा उसे अपनी पुष्ट पर सवार कर लेते हैं। परिंदे मंगतू को उसके पुराने जंगल में उतारते हैं। वो दरख्तों से आम तोड़कर परिंदों को खिलाता है जैसे एहसान का बदला दे रहा हो। फिर वो दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। माँ दरवाजे पर खड़ी उसकी झोली में खुशबू महसूस करती है। इधर बहारिस्तान में राज फाश हो जाता है। शहजादी किसी से कुछ सुन चुकी है और जब शहजादे का चेहरा देखती है तो पीछे हट जाती है। बादशाह गजबनाक हो जाता है। धोखे से मेरी बेटी को रुस्वा करने वाले को इस मुल्क में रहने का कोई हक नहीं। शहजादा और उसकी बारात को निकाल दिया जाता है। शहजादी बादशाह से कहती है, जिस शख्स ने मेरे साथ एक रात गुजारी, जो सच बोलकर चला गया, उसे ढूंढो, मैं उसी से निकाह करना चाहती हूँ। बादशाह पूरे मुल्क में ऐलान करा देता है, जो उसे ढूंढेगा उसे 1,00,000 दीनार इनाम मिलेगा। मंगतू जंगल में लकड़ियां काट रहा होता है जब दो अजनबी उसे आकर देखते हैं। क्या तुम वही हो जिसने शहजादी के साथ? मंगतू घबरा कर पीछे हटता है, मगर जब वो शहजादी की दी हुई अंगूठी निकालता है, दोनों आदमी उसे झुककर सलाम करते हैं। बादशाह ने तुम्हें बुलाया है। मंगतू महल में दाखिल होता है। उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ भी है, जो कमज़ोर कदमों से बेटे का हाथ थामे चल रही है। शहजादी उसे देखते ही पहचान जाती है। यही है मेरा वो शौहर जिसने मेरे ख्वाबों को छुआ और धोखा न दिया। महल खामोश हो जाता है। बादशाह मंगतू को गौर से देखता है, फिर शहजादी की तरफ। बेटी, क्या तू वाकई एक लकड़हारे से शादी करना चाहती है? शहजादी बोलती है, वो लकड़हारा नहीं, वही मेरा सच्चा शहजादा है। बादशाह खामोशी से खड़ा होता है और सर झुकाकर बोलता है, ऐसे बेटे को मेरा ताज भी कबूल है। बहारिस्तान के बाजारों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोग गलियों में झूमते हैं, महल रंगों से सजाया जाता है और मंगतू की माँ आंसुओं से मुस्कुराती है। बेटा, मैंने तो दुआ मांगी थी, तूने तो तकदीर बदल दी। निकाह होता है। शहजादी के लबों पर हंसी है, मंगतू के हाथ कांप रहे हैं। कबूल है कि अल्फाज जब महल की दीवारों से टकराते हैं तो जैसे सच्चाई खुद गवाही देती है। माँ, बादशाह, दरबारी सब सजदा शुक्र अदा करते हैं। मंगतू तख्त पर बैठा है, मगर उसके हाथ आज भी वैसे ही लरसते हैं जैसे कल्हाड़ी उठाते थे। वो कहता है, मैं लकड़हारे का बेटा हूँ, मगर इंसाफ का राजा बनूंगा। शहजादी फख्र से उसके पहलू में बैठी होती है और माँ सिंहासन के नीचे आंखें बंद करके दुआ मांग रही होती है। कहानी खत्म नहीं हुई, एक नई तारीख का आगाज हुआ है। बहारिस्तान का बादशाह वो बना जिसका ना कोई महल था, ना कोई फौज, सिर्फ माँ की दुआ थी और दिल का सच। शहजादी का इंतखाब उसकी आंखों की खूबसूरती नहीं, उसकी नीयत की सफाई बनी और मंगतू लकड़हारा सदियों तक बादशाह कहलाया।